Several farmers union, including the Samyukta Kisan Morcha, the SKM, have called for Bharat Bandh or nationwide strike today to press their demands before the centre. The day-long protest will begin from 6 a.m. to 4 p.m. The Bharatiya Kisan Union, part of the SKM, had called for a Bharat Bandh, citing a host of unmet demands of farmers. The Noida-based Bharatiya Kisan Parishad has also extended support to the Friday Bharat Bandh. BKU local leader Pawan Khatana said during the Bharat Bandh called by his union, farmers have been asked to strike their day for one day in order to press the government for demands. In support of the Bharat Bandh call by farmers' unions, Shiromani Gurudwara Prabandhak Committee, the SGPC, will keep its offices and educational institutions closed as well. Meanwhile, restrictions under the CRPC Section 144, including a ban on unauthorized public assemblies, processions or demonstrations, including political or religious, have been imposed across Noida in view of Bharat Bandh. Emergency services will continue as usual. Hospitals, medical shops and ambulance services, among other services, will remain open. Schools and colleges will also remain open. However, students and parents have been asked to remain in contact with the school authorities in case of any change. Commuters travelling to Delhi and coming back from the capital city have been urged to opt for metro rail service as far as possible to avoid inconvenience, as traffic restrictions have also been put into place. Brian, my colleague, is joining us from the Singhu border at this point in time. Mahinder Mahi is at the Chilla border. Mahinder Singh is also joining us from Karnal. Javed Hussain is at Tikri border as we speak. I'm going to go across to Brian and get an idea from him as to what has been the implication of the Bharat Bandh. Brian, what can you tell us from what you see around you? Well, Uday, from early morning till now, we were at the Singhu border showing the preparations, the security arrangements, and now we are at the highway that very much connects the Singhu border. If we show you the visuals, you can actually see that the level of barricading has been done here, and as a result of that, also the traffic movement has been definitely restricted. There is it has been a slower movement as well, and even in this Punjab, most of the state and national will be closed between 12 p.m. and 4 p.m. and villages also will be closed for all agricultural activities and village shops, grain market, vegetable markets. If we show you, a lot of barricading has been done, and this is a smooth, this is a highway that connects Delhi to the Singhu border, and you see has been done, be it cemented barricade, wires. Yes, a lot of barricades has been done, and as a result of that, Uday, if we show you the visuals here also, you can actually see that as a result of that, since it has taken 20-30% of the road, the traffic movement has been restricted. The traffic has definitely been restricted, and as a result of that also, people, two-wheelers, four-wheelers were commuting from one place to another. They are facing a lot of problems because the traveling time has become slower, and not just here, but be it the NH48, the BND, the Ghazipur border, Ghaziabad borders, Ghaziabad, Delhi, Ghaziabad routes, all of these routes are compromised because the traffic restrictions have been, affected, especially this area where the traffic, movement where normally it's smoother, it has become very, very slow. Yes, Uday. Right. Let me also rope in Javed Hussain, who's joining us from the Tikri border. Javed, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जावेद, क्या हाल है अभी, क्या परिस्थिति है जहां आप हैं अभी? भारत बंद का क्या असर दिखाई दे रहा है? जी देखिए, भारत बंद का जो असर है वो टिकरी बॉर्डर पर इसका असर कुछ खास नहीं है, क्योंकि ये जो कॉल है ये उत्तर प्रदेश के नोएडा, ग्रेटर नोएडा, उधर उस तरफ के जो रेंज के जो किसान उनकी तरफ से कॉल किया गया था। यहाँ पर टिकरी बॉर्डर पर जो है जैसा 2 दिन से है, आज चौथा दिन है किसान आंदोलन को लेकर, और आज चौथा दिन है और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सामने जो अब 4 बजे एक कॉल लिया गया है सिक्योरिटी ब्रीफिंग को लेकर, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेज जो मेरे सामने आप देख रहे हैं, रैपिड एक्शन फोर्स और सीआरपीएफ के जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं, इसके साथ दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं, उन लोगों की ब्रीफिंग होगी जो यहाँ पर
शिफ्ट वाइज जिनकी यहाँ पे ड्यूटी यहाँ पे डिप्यूट की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो ट्रैफिक जो है, जो आम लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं उनका असर पड़ रहा है। और जो स्कूल के बच्चे, अभी हमने जब स्कूल के बच्चों से मॉर्निंग में बात की थी, उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्हें किसान आंदोलन की वजह से 2-2 किलोमीटर पैदल चल के स्कूल तक आना पड़ रहा है, क्योंकि एग्जाम का टाइम है। और आपको बता दूं कि कल सिक्योरिटी ड्रिल किया गया था दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरफ से। एक ज्वाइंट सिक्योरिटी ड्रिल था, जिसमें अगर यहाँ तक जैसे किसान अगर पहुंचते तो उनसे किस तरीके से फोर्सेज और दिल्ली पुलिस निपटेगी, किस तरीके से उनको रोकने की कोशिश की जाएगी, किस तरह से उनसे बात किया जाएगा, पहले किस तरह से उनको समझाया जाएगा। तो एक पूरा जो सीक्वेंस था वो उस ड्रिल के सीक्वेंस में यहाँ पर कल एग्जीक्यूट किया गया था। और मैं आपको बता दूं कि अभी थोड़ी देर में पैरामिलिट्री फोर्सेज और दिल्ली पुलिस की एक ब्रीफिंग होगी, सिक्योरिटी ब्रीफिंग होगी, जिसमें लगातार मूवमेंट को लेकर किस तरीके से लगातार एग्जीक्यूट किया जा रहा है, किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उसको लेकर दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स और जो सीआरपीएफ पैरामिलिट्री फोर्सेज के जो कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट जो यहाँ पर मौजूद हैं, वो एक ज्वाइंट इस पूरे ब्रीफिंग को हैंडल करते हैं। लेकिन सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो आप विजुअली सिक्योरिटी देख सकते हैं मेरे पीछे, किस तरीके से पूरी तरीके से जो बैरिकेड है वो एज इट इज है। और लगातार कुछ देर पहले डीसीपी यहां पर पहुंचे थे, आउटर डिस्ट्रिक्ट ये लगता है जो बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर है। वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के जो एडिशनल डीसीपी जो यहाँ पर इंचार्ज है, जो इस पूरे मूवमेंट को देख रहे हैं, वो लगातार बात करें कि किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाए, किस तरीके से सिक्योरिटी को और बेहतर बनाया जाए। क्योंकि जो किसानों से लगातार जिस तरीके से गुरुवार की रात तक जब कोई नतीजा नहीं निकला अभी तक, और किसानों का ये साफ कहना है कि वो दिल्ली जाएंगे, तो कहीं ना कहीं किसान जो है वो दिल्ली आने के लिए अड़े हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो खनौरी डबवाली बॉर्डर है, ये 3-4 दिन से पूरी तरीके से सील है। 7 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है आपको पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर, जहां पर इस वक्त किसान अड़े हुए हैं आगे बढ़ने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि मैं बता दूं कि इस आंदोलन से हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये तमाम जो रूट है ये पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गया है। और लोग जो है पैदल आने को मजबूर है। जो मेरे सामने बैरिकेडिंग है, आप देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो परेशान है। लोगों को किसी तरह का कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, सिर्फ ऑटो के जरिए लोग यहाँ तक आ रहे हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो ऑटो का जो किराया वो भी बेयर नहीं कर सकते, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो ऑटो का पैसा दे सके। ऐसे में वो लोग हैं जो महीने का बहुत कम 5 से 6 हज़ार सैलरी कमाते हैं, उनका कहना है कि वो कहां से ये पैसे दे पाएंगे। तो इस तरह की प्रॉब्लम आ रही, लोगों को सामान, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पैदल चलने को मजबूर हैं। स्कूल की जो बच्चे हैं वो पैदल आ रहे हैं, 2 चिल्ला किलोमीटर वो बॉर्डर पैदल से हमारे साथ हैं, उनसे भी ले लेते हैं एक बार जायजा कि क्या माहौल है वहाँ। महेंद्र, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, चिल्ला बॉर्डर पर हैं आप, बताइए क्या सूरत हाल है आपके आसपास। देखिए उदय, जिस तरीके से पिछले 4 दिनों से पंजाब के जो किसान हैं वो शंभू बॉर्डर पर डेरा डाल के बैठे हैं और ये सोच रहे हैं कि हम दिल्ली कूच कैसे करें। मगर वहीं जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं, पैरामिलिट्री फोर्स है, अतिरिक्त जो फोर्स लगा गई है, वो उनसे आगे बढ़ने नहीं दे रही। इसी बीच संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये ऐलान किया जाता है कि हम 16 तारीख को, यानी कि 16 फरवरी आज के दिन, भारत को बंद किया जाएगा। तमाम जो राष्ट्रीय मार्ग है, चाहे हम रेलवे की बात करें या नेशनल हाईवे की बात करें, टोल की बात करें, सबको हम वहां जाके कहीं ना कहीं प्रदर्शन करेंगे। तमाम जो टोल्स है उसको फ्री कराएंगे। स्थिति अगर नोएडा की मैं बताऊं तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, अगर आप दादरी की तरफ जाएंगे तो भारत बंद का जो एक तरीके से आह्वान किया था उसका असर नोएडा में नहीं देखने को मिला। तमाम जगहों पे कल देर रात ही जो ज्वाइंट सीपी हमारे से बातचीत, उन्होंने कहा देखिए भारत बंद का ऐलान किसानों ने किया है, उसको देखते हुए हमने जो सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए। तकरीबन 2,500 पुलिसकर्मी पूरे जनपद में तैनात किए गए थे, जो कि बस किसानों के एक तरीके से एक्शन को देखेंगे कि वो क्या करने वाले, कहाँ जाएंगे। और 500 से जो अधिक जो ट्रैफिक पुलिस के कर्मी थे, जिनको ट्रैफिक डाइवर्ट के लिए या ट्रैफिक व्यवस्था गड़बड़ाई नहीं उसके लिए उनको रखा गया था। ब्लैक कमांडो पीएससी की 4 कंपनी, यानी कि जो पुलिस थी अपनी तरफ से पूरी तैयार थी। उन्होंने साफ तौर पे कहा था जो भी धारा 144 का उल्लंघन करेगा या जो भी जो ऐसे शरारती तत्व होंगे जो माहौल खराब करेंगे, बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं मौजूद हूँ नोएडा चिल्ला बॉर्डर पर। यहाँ भी आप तस्वीरें देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि जो भारत बंद का एक तरीके से ऐलान किया था संयुक्त किसान मोर्चा ने, वो बिल्कुल यहाँ बेअसर है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से, जो ट्रैफिक है बिल्कुल स्मूथली है। ये रास्ता नोएडा से दिल्ली जाता है और दूसरी तरफ जाएंगे तो दिल्ली से नोएडा, और यही रास्ता यमुना एक्सप्रेसवे और डीएनडी के लिए भी जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ जो भारत बंद का एक ऐलान किया था किसानों की तरफ से, उसका असर नोएडा में तो नहीं देखा जा रहा। करनाल से जुड़े हैं, उनसे भी एक बार पूछ लेते हैं कि क्या चल रहा है उनके आसपास। महेंद्र, करनाल में क्या माहौल है? 1-2 दिन पहले काफ़ी वहाँ पर दांवपेच देखने को मिले किसानों और पुलिस के बीच में, अभी क्या माहौल है?
जी बिल्कुल, देखिए आज 16 फरवरी के लिए किसान संगठनों की तरफ से दो बड़े ऐलान किए गए थे। संयुक्त किसान मोर्चा ने जहां आज भारत बंद का आह्वान किया था, तो वहीं भारतीय किसान यूनियन के चड़ूनी ग्रुप ने हाईवे के टोल्स जो है वो फ्री करने की घोषणा की थी। तो कहीं ना कहीं भारत बंद की बात की जाए तो भारत बंद लगभग बेअसर रहा है करनाल के आसपास के क्षेत्रों में, क्योंकि खुद किसान जो है भारत बंद में शामिल नहीं हुए। हमने सुबह सब्जी मंडी का जायजा लिया था कि सब्जी मंडियों में किसान पहुंचे थे अपनी उपज लेकर। तो ऐसे में किसानों ने भी अपना काम बंद नहीं किया। सब्जी मंडियों में रूटीन की तरह जो आवक आई है, किसान पहुंचे हैं। उसके बाद बात की जाए जिस तरह से दूसरा आह्वान जो भारतीय किसान यूनियन चड़ोनी ग्रुप की तरफ से किया गया था टोल का, वो कहीं ना कहीं कामयाब होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि हाईवे के बस्ताड़ा टोल पर भारतीय किसान यूनियन के समर्थक जो पहुंचे थे, उन्होंने दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक सभी टोल जो है फ्री रखे और अपनी जो है विरोध एक तरीके से जताया इस तरह से। और अगला आह्वान भी जो है चड़ूनी की तरफ से किया गया, कि गुरनाम सिंह चड़ूनी भी टोल पर पहुंचे थे। उन्होंने कहा है कि कल भी किसान अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। हरियाणा भर में कल ट्रैक्टर मार्च जो है तहसील स्तर पर निकाली जाएगी। किसान ट्रैक्टरों के जरिए तहसील कार्यालयों में पहुंचेंगे और जिस तरह से किसानों के साथ आपका शुक्रिया। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.